Inflation. What do you mean by inflation? It is very important to know about the inflation because it is generally came in different editorials, and for the UPSC aspirants, the inflation is very important topic. If you see the syllabus, it is directly mentioned, and it is very general to ask a question from this topic. So, what do you mean by inflation? Inflation आखिर होता क्या है? Inflation is basically, or in a vague term, we can say that increase in the prices of commodities. Increase in the prices of commodities. When the prices of the commodities increasing for some time, for some time, it means you for a short time. If the prices is increasing, it is not counted as inflation. Fee means for a long term, if the prices of the commodity is increasing, it is termed as inflation. Economist Knish, he said that if there is a mismatch between the aggregate demand and supply, it is result into a inflation. What it means? This is the graph of the supply and demand. Suppose a demand, this is the demand by consumers. If the demand of consumers increase, how the demand of consumers increase means कंज्यूमर्स की डिमांड कैसे इंक्रीज़ हो सकती है, या फिर उनकी इनकम्स बढ़ जाए. मतलब कल को आपकी इनकम अगर बढ़ती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदोगे, मीन्स आपकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी. दूसरा, आपकी जो गवर्नमेंट है वो टैक्स में कट करे. ठीक है, इंडिया रिसेंटली क्या हुआ है कि वो 8% ग्रोथ जीडीपी में देखा है. दिस इज़ बिकॉज द decrease of the GST में कमी के आने की वजह से लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम, what is called disposable incomes, means a income that we keep for a day to day expenses. For day to day expense के लिए जो हम इनकम हमारे पास जो बचती है, दैट इज़ कॉल्ड अ डिस्पोजेबल इनकम. सो या तो हमारे पास नेट डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा हो, या तो टैक्स रेट में कम हो, या गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स बढ़ जाए. बेसिकली जब हम देखते हैं एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला, तो C+G+I+X. ठीक है, इन चारों कंपोनेंट्स में मीन्स कंजम्पशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट में जब भी चेंजेस आते हैं, दैट विल इंक्रीज द डिमांड. फर्स्ट डिमांड, सपोज अगर डिमांड यहाँ बढ़ गया है, सपोज डिमांड बढ़ के इस ग्राफ पे आई, देन ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड दिस, so this is what a increase in the price level that will lead to inflation, that will cause inflation. Now inflation is of two type, the cost push inflation, and second one is the demand pull inflation. Cost push inflation, what it is like, when the prices of the commodities increase because the raw materials what we needed to make that commodities increases. A cost push inflation is increase in the cost of production when the wages of labor increases, when the prices of raw material increases, that will ultimately lead to increase in the cost of production and associated dimensions. So if there is expensive labor, minimum capital is there, raw materials very expensive, ठीक है, land, labor, capital and entrepreneurship, it is basically a low, means they have a high prices and low availability, then it will ultimately lead to a cost push inflation. Now what is demand pull inflation? Demand pull inflation क्या होता है? Demand pull inflation is basically, we generally see when we know about
a law of demand. When there is an increase in the demand, the prices of the commodities automatically increases. Why? Because we have a limited resources. Because of the limited resources, when the demand of resource or demand of any commodities increases, the prices of that commodities ultimately got increases. How do we demand? ठीक है, income, tax cut, bonus, all these basically led to a demand pull inflation. डिमांड क्यों बढ़ेगी? जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे, मीन्स इन्फ्लेशन आएगा. ठीक है, तो डिमांड कैसे बढ़ सकती है? पहले बताया कि नेट डिस्पोजेबल इनकम किसी की हो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, किसी की इनकम बढ़ा दी जाए, टैक्स में कट हो, या कंपनी द्वारा बोनस मिलता है तो लोग एक्सपेंसेस ज़्यादा करते हैं. या तो सेकेंड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स मीन्स वेलफेयर स्कीम्स, जैसे सब्सिडीज़ देना. ठीक है, लोगों के घरों में मतलब 6,000 रुपये देना अंडर किसान सम्मान निधि योजना. ठीक है, दिस ऑल थिंग्स लेड टू वॉट? इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर्स, एंड दिस विल अल्टीमेटली कॉज अ मोर demand. Second one is the deficit financing. Suppose there is a fiscal deficit or a revenue deficit, and government ask to RBI to print more money. If there is more money in the economy, the value of the money start depreciating, and this will ultimately lead to inflation. Second one is the investment. If there is a high investment, that also cause more demand for commodities and will ultimately lead to a demand pull inflation. Here is a Philip curve. It is very important and it is generally asked in the prelims that what Philip curve means. Philip curve say that there is a relationship between the inflation rate and unemployment. ठीक है, इन्फ्लेशन रेट मीन्स महंगाई और बेरोजगारी में क्या है, एक रिलेशनशिप है. वो क्या है कि सपोज इन इकॉनमी में अगर हाई इन्फ्लेशन है तो वहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी, लो होगी. ठीक है, एक घर में दो भाई हैं, ठीक है, दो भाई हैं, ठीक है, अगर महंगाई कम है तो एक भाई भी अगर काम करता है तो खाना मतलब घर पे पूरा जो खर्चा है वो सही से चल जाता है. बट अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, सपोज देयर इज़ अ हाई इन्फ्लेशन इन द इकॉनमी एंड द expenses is very high, expenses is more, so we need two people to earn. तो ये देखा जाता है कि if there is a high inflation that will ultimately cause a low unemployment. If there is a low inflation, that is a high unemployment. So you can say that what ये relationship कैसा है, inversely proportional है. ये relation कैसा है, inversely proportional है. ठीक है, एक बढ़ता है तो एक घटता है. ठीक है, फिशर ने कहा है, इन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है इन्फ्लेशन की, कि इन्फ्लेशन इज़ रिफर टू अ सिचुएशन व्हेन अ परचेजिंग पावर ऑफ मनी गोज डाउन. व्हाट इट मीन्स, परचेजिंग पावर ऑफ मनी गोज डाउन मीन्स अर्लियर वी बाई 5 bananas in 20 rupees. Now we buy 5 bananas in 100 rupees. Okay, means what? The value of your money start depreciating with time. So a purchasing power of your money goes down. Terminologies related to inflation. First terminology is galloping inflation. Means these terminologies is generally used, or we can if we do not know the meaning of these terminologies, we are not able to understand the question. So it is very necessary to know about it. Galloping inflation is what? A galloping inflation is basically a uncontrollable inflation or a hyperinflation. Inflation when the inflation increase by 100%, 200% or 500%, मतलब कि अगर आज एक सामान जो 10 रुपये का मिल रहा है वो कल जो आज एक सामान 1 रुपये का मिल रहा है वो कल 100 रुपये का मिलने लगे. दैट इज़ 100% इंक्रीज इन द प्राइसेस, 100 times इंक्रीज इन द प्राइसेस. दैट विल इज़ अनकंट्रोलेबल इन्फ्लेशन. ऐसी इन्फ्लेशन क्या है? गैलोपिंग इन्फ्लेशन. The second inflation is called, type of inflation is called a disinflation. What it means when the rate of inflation, basically there is a
there is a boundaries for the inflation, that is from 2 to 6%. 2 to 6% means every economist and RBI try to keep the inflation rate in these boundaries. But if the rate of inflation goes below 2%, it is called a disinflation. Suppose the rate of inflation means, क्या इन्फ्लेशन कभी जीरो हो सकता है? क्या इन्फ्लेशन कभी जीरो हो सकता है? ठीक है, मतलब कि आज जो सामान 5 रुपये का मिल रहा है वो 20 साल बाद भी 5 रुपये का मिले. ठीक है, इससे इकोनॉमी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा. मीन्स देयर इज़ अ इनोवेशंस हैम्पर होगा. सेकेंड थिंग कि लोगों को इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन कम होगा. ठीक है, ऐसे बहुत सारी मेजर थिंग्स होंगे जिससे हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट, इन सभी चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ेगा. सो इन्फ्लेशन कैन नॉट बी जीरो. Government always try to keep a inflation between 2 to 4 or 6% so that there will be always a motive, or there is always a growth in the economy. What it means by deflation? Deflation is basically a inverse of the inflation. When the prices fall, means when the prices fall, it is negative of inflation. Reflation is when a government attempt to reverse disinflation, start to increase the prices. ठीक है, इन्फ्लेशन में प्राइसेस ज़्यादा होते हैं बट डिफ्लेशन में प्राइसेस क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं. द गवर्नमेंट इज़ ट्राई टू रिवर्स disinflation and try to bring the economy to a tolerable inflation zone is what, 2 to 4%. structural inflation क्या होता है? structural inflation because of structural constraint in term of factor of productions. ठीक है, जब स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट के कारण जो आते हैं इन्फ्लेशंस, उनके कारण, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके जो जनरली लोग बोलते हैं कि मैगी जो होती है वो पहाड़ों पे 500 रुपये की मिलती है एक प्लेट. ये 500 रुपये की क्यों मिल रही है? बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रक्चर इज़ नॉट available or easily not accessible. Because of that the rate of Maggi is increasing. So it is a type of structural inflation. Stagflation क्या होता है? Stagflation is very, like, it is a horror for an economy if there is a stagflation. ठीक है, stagflation means generally it is opposite of a critique to Philip Kerr. Philip Kerr said that the unemployment rate is inversely proportional to inflation. But here it is said that if there is a inflation, if there is a decrease in the inflation, there is also a decrease in the unemployment rate. ठीक है, इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जब दोनों हाई होता है, दैट इज़ कॉल्ड अ स्टैगफ्लेशन, गिवन बाय फ्रीडमैन. फ्रीडमैन इज़ अ क्रिटिक ऑफ फिलिप को. एग्जाम्पल इन कोविड टाइम में रिसोर्सेज या प्रोडक्शन बिल्कुल क्या हो गया था, जीरो हो गया था, जिसकी वजह से रिसोर्सेज क्या हो गए थे, बहुत कम हो गए थे. प्रोडक्शन जीरो मीन्स देयर इज़ अ वेरी लेस इनकम टू दी वर्किंग क्लासेस. मीन्स लोगों के पास ना पैसे हैं, इस वजह से वो डिमांड कम कर रहे हैं, इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, इन्फ्लेशन ज़्यादा. ये ना कोविड टाइम का एग्जांपल अगर आप लोगे तो स्टैगफ्लेशन आपको इजीली समझ में आ जाएगा. नाउ व्हाट इज़ कजनेट कर्व? कजनेट कर्व सेड दैट जहाँ भी इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, मीन्स कोई भी इकोनॉमी में या किसी भी कंट्री में जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, देयर इज़ ऑलवेज अ इंक्रीज इन द इनइक्वालिटी इनिशियली एंड देन इट स्टार्ट रिड्यूसिंग. व्हाट इज श्रिंकफ्लेशन? श्रिंकफ्लेशन क्या है? अ कॉस्ट ऑफ गुड रिमेन द सेम बट द क्वांटिटी ऑफ इट ऑफर्ड रिड्यूस. पहले 5 रुपये का पार्ले जी बिस्किट आता था जिसमें 8 पीसेस हुआ करते थे. ठीक है, नाउ ये अब भी 5 रुपये का आता है, बस इसमें पीसेस कितनी हो गई हैं, 6 पीसेस. ठीक है, इट इज़ बेसिकली कॉल्ड अ श्रिंकफ्लेशन. मीन्स ये एक तरह का कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कंज्यूमर्स को आज भी वो लग रहा है कि हमें इन्फ्लेशन, मतलब ये इन्फ्लेशन को हाइड करता है. ठीक है, स्क्यूफ्लेशन क्या है? स्क्यूफ्लेशन बेसिकली
when we have a inflation in certain commodities. मतलब कभी देखा है ठंडियों में हमेशा होता है कि प्याज का दाम बढ़ गया, ऑनियन को गोल्ड से कंपेयर किया जाता है, ठीक है, इस समय गोल्ड का दाम बढ़ा है. सो ऑल दिस इन्फ्लेशन फॉर अ सर्टेन कमोडिटीज़ फॉर अ डिफिनिट पीरियड दैट इज़ कॉल्ड स्क्यू इन्फ्लेशन. ऐसा कुछ, ठीक है, कि मतलब कुछ प्रोडक्ट सस्ते हैं, कुछ प्रोडक्ट महंगे हैं, ठीक है, इट इज़ स्क्यू इन्फ्लेशन. तो स्क्यू इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसके लिए बनाया गया प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड. व्हाट इज़ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड? प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में क्या किया जाता है कि इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है ताकि उस कमोडिटी को चीपर रेट पे प्रोवाइड किया जाए जिसमें इन्फ्लेशन आया है. ये एक कॉर्पस है 500 करोड़ का जो मैनेज करता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड पीडीएस. सपोज इसको समझने का तरीका सोचो कि पल्सेस की रेट क्या हो गई हैं, बढ़ गई हैं. पल्सेस का दाम क्या हो गया, बढ़ गया है. मीन्स पल्सेस में क्या हुआ है, इन्फ्लेशन आ गया. बट बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है, बाकी वीट ग्रेन्स ये सभी चीज़ें नॉर्मल है. तो ये इस प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड से गवर्नमेंट एक इंटरेस्ट फ्री लोन लेगा ताकि इस पल्स को वो कम रेट पे मार्केट में प्रोवाइड कर सके. इसका बेसिकली यही है, तो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड. नाउ देयर इज़ ऑलवेज अ प्रॉब्लम टू कैलकुलेट द इन्फ्लेशन. मीन्स इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितना हुआ है, ये हमेशा प्रॉब्लम हुआ करता था कि कैसे इसको देखा जाए. अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट Lespierus, he said that we must consider a set of commodities or a basket of commodities and their respective weightage in the market in terms of significance in day-to-day life. He said that instead of checking the prices of different commodities over a time, we will make a basket of commodities. Means in this basket we take a day-to-day life uses commodities and we will calculate its prices in different time, and that will ultimately gives the rate of inflation we are facing. In India we have two indices for calculating the inflation. The first one is the wholesale price index and second one is consumer price index. होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स मीन्स एट अ होलसेल लेवल. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज एट कंज्यूमर लेवल. होलसेल प्राइस इंडेक्स introduced in 1940s. It is published by the Office of Economic Advisor under DPF IIT. The current year for the wholesale price index is 2011 and 2012. अब ये होलसेल प्राइस इंडेक्स होता क्या? द होलसेल प्राइस इंडेक्स ट्राइज टू कैलकुलेट द इन्फ्लेशन एट द होलसेल लेवल. ठीक है, होलसेल लेवल पे कितना ज़्यादा. होलसेल का मतलब तो आप समझते हैं ना कि जहाँ से कंपनी से डायरेक्ट जहाँ पे ये मटेरियल्स आते हैं जो ख़रीदते हैं वो फिर होलसेल लेवल पे रिटेलर को बेचते हैं. तो होलसेल लेवल पे कितनी जो इन्फ्लेशन आई है उसको कैलकुलेट करता है, जिसमें इन्होंने 696 आइटम्स लिए हैं. ठीक है, 696 आइटम्स होलसेल लेवल पे 696 आइटम्स को इन्होंने उठाया. उसके प्राइसेस को उनको पहले उन्होंने कैटेगराइज किया. फर्स्ट कुछ प्राइमरी आर्टिकल्स हैं, कुछ फ्यूल्स एंड पावर्स में आते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग्स में आते हैं. ठीक है, और उनकी प्राइसेस को इन्होंने देखा. ये कुछ उनके वेटेज हैं कि 22% प्राइमरी आर्टिकल्स हैं 696 आर्टिकल्स में, फ्यूल एंड पावर में 13% है, मैन्युफैक्चरिंग में 64% है. ठीक है, इससे पहले कुछ ये देख लेते हैं कि हेडलाइन इन्फ्लेशन वर्सेस कोर इन्फ्लेशन. व्हेन हेडलाइन इन्फ्लेशन रिफर्स टू ओवरऑल इन्फ्लेशन. हेडलाइन इन्फ्लेशन मीन्स इकोनॉमी में कितनी ओवरऑल इन्फ्लेशन है उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन कहेंगे. एंड जब हम उसमें से फ्यूल एंड फूड के प्राइसेस को रिड्यूस कर लेते हैं देन हम क्या मिलता है हमें, कोर इन्फ्लेशन. फ्यूल एंड फूड इज़ वेरी वॉलेटाइल प्राइस, हैव वेरी वॉलेटाइल प्राइसेस. ठीक है, इनकी प्राइसेस क्या होती हैं, हमेशा घटती बढ़ती रहती हैं. बट कुछ की प्राइसेस क्या होती हैं, जो बाकी कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइसेस बहुत स्टैटिक रहती हैं. दैट उसकी वजह से हम हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन में इसको डिवाइड करते हैं.
प्राइमरी आर्टिकल्स में क्या आते हैं, मतलब यहाँ जो उन्होंने हमने देखा था प्राइमरी आर्टिकल्स फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो प्राइमरी आर्टिकल्स में क्या आते हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स में पहले फूड, नॉन फूड और मिनरल्स आते हैं। फूड में सेरल्स, पल्सेस, रॉ कॉटन्स, जूट, दैट इज़ अल्टीमेटली इन प्राइमरी आर्टिकल्स। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स में क्या आते हैं, फूड प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है कि सर यहाँ पे भी फूड, यहाँ पे भी फूड प्रोडक्ट्स। यहाँ पे जो फूड प्रोडक्ट है इट इज़ मैन मेड, एंड यहाँ पे फूड प्रोडक्ट है ये क्या है, नेचुरल्स। ठीक है, सेरल्स, पल्सेस, रॉ कॉटन, जूट, ये सभी क्या है, नेचुरल है। ठीक है, फूड प्रोडक्ट में क्या आएंगे, जैसे फूड प्रोडक्ट में जैसे पनीर, ठीक है, बाकी चीज़ें जैसे हो गई, ठीक है, चिप्स, पैकेट्स, ठीक है, जो प्रोसेस्ड फूड है दैट इज़ इन दी फूड प्रोडक्ट। टोबैको, बेवरेजेस, ये हैं मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स में। प्राइमरी आर्टिकल समझ में, फ्यूल एंड पावर में कोल, मिनरल, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये है फ्यूल पावर। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो डाटा है ये मंथली बेसिस पे रिलीज़ होता है। ठीक है, इसमें सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जा सकता। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि सर्विसेज इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। सर्विसेज इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। में समझ में आया कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या किया जाता है, एक बास्केट क्रिएट किया जाता है। इस बास्केट्स में उन डे टू डे लाइफ चीज़ों को डाला जाता है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, जिसका यूज्ड होता है। एंड इस प्राइसेस को ओवर टाइम हम देखते हैं कि इस बास्केट की प्राइसेस में कितना चेंज आया है। अब इस बास्केट में कितने आइटम्स हैं, 696 आइटम्स हैं। उन आइटम्स को डिवाइड किया गया है प्राइमरी आर्टिकल्स, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट और फ्यूल एंड पावर में। इनमें कौन कौन से, फूड, नॉन फूड, फूड प्रोडक्ट, टोबैको, बेवरेज, कोल, मिनरल एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चैलेंजेस क्या हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स में। ठीक है, पहले सर्विसेज को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया इज़ नोन फॉर अ सर्विस इकॉनमी। ठीक है, इन इंडिया the major people involved, the major people participate is in the service economy. So here the services is not considered. Goldar committee said that WPI means wholesale price index calculate the indirect taxes, and there should it need a change. How wholesale price index include indirect taxes. ठीक है, सो गोल्डार कमेटी ने कहा था कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के बदले हमें क्या लेना चाहिए, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को कंसिडर करना चाहिए। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स मीन्स जब भी कंपनी से जो प्रोडक्ट निकलता है, कंपनी से जो प्रोडक्ट अभी हाल में निकला है, ठीक है, वो अभी होलसेल लेवल पे नहीं पहुंचा है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंपनी पे जो प्राइसेस होते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा वो होलसेल लेवल पे होते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा वो रिटेलर लेवल पे होते हैं। ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, ये है कंपनी। ठीक है, कंपनी से क्या आता है, होलसेल लेवल पे, फिर होलसेल लेवल पे आता है ये शॉप लेवल पे आता है। ठीक है, हम अभी क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, सॉरी यहाँ पे होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। यहाँ से आते हैं, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको हमें काफ़ी इनडायरेक्ट टैक्सेस भरने पड़ते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें क्या करने पड़ते हैं, भरने पड़ते हैं। तो हम होलसेल प्राइस इंडेक्स में कुछ टैक्सेस को भी क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, जिससे हमें ट्रू इन्फ्लेशन की वैल्यू नहीं पता चल पा रही है। सो गोल्डार कमेटी सेड दैट WPI कैलकुलेट द इनडायरेक्ट टैक्सेस, चेंजेस इन टैक्स रेट अफेक्ट द WPI मीन्स अगर टैक्स रेट में चेंज हो रहा है तो WPI भी क्या होगी, अफेक्ट होगी। सजेस्ट टू शिफ्ट ऑन प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। चंद्रशेखर कमेटी सजेस्ट दैट देयर शुड बी अ सर्विस परफॉर्मेंस इंडेक्स, अ सेपरेट सर्विस परफॉर्मेंस इंडेक्स। मीन्स यहाँ पे सर्विसेज इंक्लूड नहीं कर रही है, तो चंद्रशेखर ने कहा कि सर्विसेज परफॉर्मेंस इंडेक्स ने हमें क्या करना चाहिए, एक सेपरेट बनाना चाहिए। अब कुछ रिफॉर्म है होलसेल प्राइस इंडेक्स में, कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए गए हैं बाय रमेश चंद कमेटी। इन सब कमेटीज़ को अगर आप आंसर में कोट करते हो दैट विल मेक योर आंसर वेरी इफेक्टिव। द होलसेल प्राइस इंडेक्स रिफॉर्म दैट बेस ईयर शुड बी चेंज टू 2017-18 मीन्स 2011 या 12
2011-12 जो से चेंज करके 2017-18 चेंज करना है। 696 आइटम्स को बढ़ाकर 1296 आइटम्स, बिकॉज with changing time, with globalization, with westernization, we have adding more items in our basic day to day life. मैगी जैसे ऐड हुआ है हमारी लाइफ में, बट मैगी बास्केट्स में नहीं है, 696 आइटम्स में नहीं है, ठीक है। तो हमें अपनी बास्केट को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, मीन्स 1296 आइटम्स को हमें जोड़ने की ज़रूरत है। वेटेज को चेंज करने की ज़रूरत है। प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चरिंग, मीन्स इनमें क्या करनी है, वेटेज को चेंज करने की ज़रूरत है। सेपरेट सर्विस परफॉर्मेंस इंडेक्स बनाने की ज़रूरत है, जिसमें 6 सर्विसेज को इंक्लूड करना है। फर्स्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सिक्योरिटीज़, टेलीकम्युनिकेशन, एविएशन एंड रेलवे। So these are the suggestion or reform by Ramesh and the committee, and it is very important for you to learn these points. Now the third is consumer price index. Consumer price index that impact inflation on the consumers, means हम ग्राहक, means आम आदमियों पे, we are the consumers पे इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो कौन कैलकुलेट करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इनिशियली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता था 4 हेड्स पे। पहला सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, सीपीआई रूरल इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबरर्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन नॉन मैनुअल लेबर्स, ठीक है। इनको कैलकुलेट भी अलग अलग करते थे, ठीक है। ये 3 को लेबर ब्यूरो, एक को एनएसओ, ये याद रखना जरूरी है। बेस्ड ऑन देयर कंजम्पशन पैटर्न, ठीक है। अब देखो ये इनको अलग अलग क्यों किया, जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि जो एग्रीकल्चर लेबर है क्या वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उन दोनों का कंजम्पशन पैटर्न या परचेजिंग पावर सेम है, नहीं। सो वी हैव टू मेक अ डिफरेंट बास्केट फॉर ऑल दिस 4 हेड्स, बट इसमें चेंज हुआ 2010 में। एनएसओ बेस्ड ऑन रंगाराजन रिकमेंडेशंस there should be a 6 type of consumer price index. Consumer price index for industrial worker, consumer price index for combined, consumer price index for rural, consumer price index for urban, consumer price index for rural agriculture, consumer price index for agriculture labor. इनके बेस ईयर भी डिफरेंट है, ठीक है। अब देखो इनके बेस ईयर 2012 हैं, ठीक है। इनकी बेस ईयर 1986 है, 1986 समझ रहे हो, इनका बेस ईयर 1986 है। एग्रीकल्चर रूरल, एग्रीकल्चर लेबरर, इनकी कंजम्पशन पैटर्न या कंजम्पशन बास्केट या परचेजिंग पावर में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं आए। इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो कि शहर में रहते हैं, अर्बन में रहते हैं, इनके बेस ईयर न्यू है, ठीक है। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स, देयर आर टोटल कितने आइटम्स हैं इसमें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। इनका अलग अलग इंडेक्सेशन, इसको इंडेक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इसमें टोटल 460 आइटम्स हैं, जिनको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट तो फूड एंड बेवरेजेस, पान एंड सुपारी, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट, क्लॉथिंग एंड फुटवेयर, हाउसिंग, सीपीआई रूरल में नहीं होगा क्योंकि हम हाउसिंग रेंट वगैरह नहीं देते हैं, फ्यूल एंड लाइट एंड मिसलेनियस, ठीक है। नाउ हेडलाइन सीपीआई और कोर सीपीआई क्या होता है। हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कोर सीपीआई मीन्स हम जब फूड एंड फ्यूल को माइनस कर देते हैं, वही पहले वाला, ठीक है।